Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to physics class for grade 10. Today our topic is detection of sound. In our previous lecture we have discussed the transmission of sound, that how sound can be transmitted from one place to another place, and I have told you that sound wave is a type of mechanical wave and it requires material for its propagation or for its motion from one to another place. Actually, propagation is the name for the transmission or motion of the wave. Propagation is the name for the motion of wave. We cannot say that wave is walking. We have to say that wave is propagating. So we have discussed that how sound can be transmitted from one place to another place. It requires material for its propagation, and material may be solid, liquid, gas, etc. And when sound travels in the material, it travels in the form of successive compressions and rarefactions. Compression is the part of the wave where particles of medium are crowded, and rarefaction is that part of the wave where particles of medium are rare. Clear? So um, today and in that lecture we have also performed a simple experiment of bell jar experiment, in which we have proved that light wave can be transmitted without any material, but sound wave cannot be transmitted if there is no material surrounding the vibrating object. So sound wave cannot be transmitted in vacuum, so we cannot hear sound waves on the surface of moon because there is no air or there is no material on the surface of the moon. So today our topic is detection of the sound. Detection of sound or receiving the sound or reception of sound. रिसेप्शन ऑफ साउंड भी बोल सकते हैं इसको आप, रिसेप्शन ऑफ साउंड. इट कैन आल्सो बी सेड दैट इट इज़ डिटेक्शन ऑफ साउंड. ठीक है, या हियरिंग ऑफ साउंड बोल सकते हैं. सो आज का टॉपिक है डिटेक्शन ऑफ साउंड. साउंड को डिटेक्ट करना, साउंड को हियर करना, साउंड को रिसीव करना. दिस इज़ आवर टुडेज टॉपिक. ये तीन हमारे मेन पार्ट्स थे साउंड को सुनने के लिए. फर्स्ट पार्ट जो था फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था production of sound. So in order to hear the sound, three processes are required. One is the production of sound. पहले तो साउंड प्रोड्यूस होनी चाहिए. सेकंड वन इज द ट्रांसमिशन ऑफ द साउंड. फिर साउंड एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होनी चाहिए. एंड द थर्ड वन इज द डिटेक्शन ऑफ द साउंड और रिसेप्शन ऑफ साउंड. ठीक है. सो हमने कहा था फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द साउंड वी नीड वाइब्रेटिंग बॉडी. Second thing, for the transmission of the sound, we need transmitting material. Third thing, for the detection of sound, we need hearing device. So hearing device is required to detect the sound. So let's start our today's topic, that is detection of the sound. Detection of sound. For detection of sound, we need to convert the sound waves again or vibration again into the sound waves. This is the vibration, vibration. So to detect the sound, we need to convert the vibration again into the sound waves, and for that we need a device, and our natural device for hearing the sound is ear. So ear is the biological organ that can detect the sound. It is the natural organ that can detect the sound. इसके अलावा कुछ आर्टिफिशियल डिवाइसेस भी बनाई जाती हैं जो कि साउंड को डिटेक्ट कर सकती हैं. उन आर्टिफिशियल डिवाइसेस में आप देख सकते हैं माइक्रोफोन. ठीक है, नॉर्मली क्या करता है माइक्रोफोन, माइक जिसको आप बोलते हैं, जिसमें आप कोई भी बात करते हैं, तो वो माइक जो होता है, माइक्रोफोन जो होता है, वो क्या करता है, इट कन्वर्ट्स द साउंड वेव फर्स्ट इनटू द, पहले जो साउंड वेव्स इसको मिलती हैं ये इनको किस में कन्वर्ट कर देता है. सो इट कन्वर्ट्स साउंड वेव इनटू इलेक्ट्रिकल signals. Electrical signals. So in this way, if we use microphone, then it converts sound waves into electrical signals. तो electrical signals की फॉर्म में उसको डिटेक्ट कर सकते हैं साउंड वेव्स को. सो whenever sound waves strikes on the microphone, माइक्रोफोन को जाके स्ट्राइक करेंगी तो वो वहाँ से किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाएंगी. तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इजीली डिटेक्ट हो सकते हैं. सो साउंड वेव्स डिटेक्ट हो जाएगी. ठीक है. इसके अलावा कुछ बंदे जिनके हियरिंग जो है कैपेबिलिटी वो बहुत वीक होती है, वो बड़ी ऊंची आवाज़ सुनते हैं, स्पेशली जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं, तो उनको ये होता है कि
उनको आहिस्ता जो आवाज़ होती है वो सुनाई नहीं देती, फिर उनके लिए बहुत ऊंचा बोलना पड़ता है आपको, या उनके ईयर के करीब जाके बोलना पड़ता है। सो उन बंदों के लिए ये होता है कि एक डिवाइस होती है जिसको हियरिंग डिवाइस बोलते हैं, हियरिंग आर्टिफिशियल हियरिंग डिवाइस, वो फिर उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आर्टिफिशियल हियरिंग डिवाइस होती है, इसको ये अपने ईयर के साथ लगा लेते हैं, और उसमें क्या होता है, फिर उनको आवाज़ क्लियरली या इजीली उनको आवाज़ सुनाई देती है। अब इसके लिए ज़रूरी ये है, आर्टिफिशियल हियरिंग डिवाइस जो होती है ये क्या करती है, ये आवाज़ को ऊंचा करके सुनाती है। जिन लोगों की हियरिंग कैपेबिलिटी वीक होती है, वो फिर आर्टिफिशियल हियरिंग डिवाइस को यूज़ करते हैं। ठीक है, इससे उनको आवाज़ इजीली सुनाई देती है। अब आर्टिफिशियल हियरिंग डिवाइस जो है, ये आर्टिफिशियल हियरिंग डिवाइस है, आप इसको देख सकते हैं। तो इसको ईयर के साथ लगा लिया जाता है। ठीक है, ऐसे जैसे यहाँ पे आपको ईयर के साथ ये डिवाइस लगी हुई नज़र आती है, तो ईयर के साथ इस डिवाइस को लगा लिया जाता है, इस डिवाइस को। ठीक है, और उसमें ये होता है कि आपको आवाज़ फिर इजीली सुनाई देती है। अब इसमें होता क्या है, तो इस डिवाइस में तीन चीज़ें होती हैं, तीन मेन इसके कंपोनेंट्स हैं जिस पे ये वर्क करती है। वन कंपोनेंट इसमें है जी, सबसे पहले जो है वो है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन। सेकंड जो चीज़ है इसमें वो है जी एम्पलीफायर। और तीसरी जो चीज़ है इसमें वो है स्पीकर। सबसे पहले माइक्रोफोन जो होता है, ये जो साउंड आ रही होती है उसको कन्वर्ट कर देता है इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। अभी जैसे हमने बताया था, साउंड को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ठीक है, माइक्रोफोन कन्वर्ट्स साउंड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। फिर उसके बाद है एम्पलीफायर। एम्पलीफायर क्या करता है, इट एम्पलीफाइज द साउंड। ये एम्पलीफायर, एम्पलीफायर का मतलब है इंक्रीज कर देना, यानी ऊंचा कर देना। ठीक है, ये साउंड को ऊंचा कर देते हैं, एम्पलीफाई कर देते हैं, बढ़ा देते हैं उसकी इंटेंसिटी को, आप कह सकते हैं। साउंड को एम्पलीफाई कर देता है। ठीक है, और तीसरी चीज़ जो है वो है स्पीकर। स्पीकर क्या करता है, मींस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में पहले माइक्रोफोन ने साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट किया, फिर एम्पलीफायर ने इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को बढ़ा दिया। ठीक है, उनके एम्पलीट्यूड को बढ़ा दिया। फिर उसके बाद स्पीकर क्या करेगा, अगेन से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ऊंची साउंड में कन्वर्ट करके हमें सुनाई देगा। तो लाउड साउंड इससे सुनाई देती है, लाउड साउंड। ठीक है, लाउड साउंड सुनाई देती है। हियरिंग डिवाइस जो है, ये ऐसा नहीं है कि जिन बंदों को बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही, या जिन बंदों को कोई नर्वस सिस्टम का कोई प्रॉब्लम हो, नर्व ऑप्टिक्स नर्व जो है, ऑडिटरी नर्व जो होते हैं, ऑप्टिक्स तो लाइट के लिए होते हैं, ऑडिटरी नर्व्स वगैरह का अगर किसी को कोई इशू है, तो उनके लिए ये नहीं होता। मीन्स अगर उनका नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम है, बिल्कुल उनको आवाज़ ही नहीं आ रही, तो उनके लिए ये नहीं यूज़ हो सकता। ठीक है, ये सिर्फ उन बंदों के लिए यूज़ हो सकता है जिनको विद द पैसेज ऑफ टाइम, एज के साथ साथ, जिनकी साउंड सुनने की कैपेबिलिटी थोड़ी सी वीक हो जाती है, जिनको आहिस्ता आवाज़ जो है या कम इंटेंसिटी की साउंड जो है वो उनके ईयर ड्रम को वाइब्रेट नहीं कर पाती, या कम आवाज़ उनको आती है, उनको क्लियरली सुनाई नहीं देती, तो उन बंदों के लिए ये हियरिंग एड होता है, हियरिंग डिवाइस होती है। क्योंकि इसमें आपको मैकेनिज्म पता चल गया कि ये क्या करता है, जस्ट आवाज़ को थोड़ा ऊंचा करके दे देता है। जैसे आप माइक्रोफोन जो होते हैं हैंड फ्री जो लगा लेते हैं आप लोग, तो वो हैंड फ्री जो आप लगाते हैं वो आपको कंसंट्रेट करके सारी साउंड आपके ईयर में पहुंचाता है। ठीक है, उसी हैंड फ्री को अगर आप ईयर से दूर करके रखें, उसके स्पीकर को, तो ईयर से दूर करके रखें तो आवाज़ नहीं आएगी, बट ईयर के करीब करके रखते हैं आवाज़ आती है, सारी आवाज़ को कंसंट्रेट करके आपको वहाँ पे प्रोवाइड करता है। तो ये ऐसा करता है कि जो आवाज़ बाहर से आ रही है सराउंडिंग से, वो ये उसको कैच करता है एंड उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, फिर वो सिग्नल्स एम्पलीफाई होते हैं। उसी तरह से अगर मिल जाते तो फिर तो आवाज़ ऊंची ना होती। वो सिग्नल्स क्या होते हैं, एम्पलीफाई होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, फिर एम्पलीफाई होने के बाद दोबारा साउंड में स्पीकर से कन्वर्ट होकर हमें लाउड साउंड सुनाई देती है। ठीक है, तो ये आवाज़ ऊंची करके सुनाई देती है इससे। तो हियरिंग डिवाइस का ये मकसद होता है। ठीक है, ईयर जो है
ईयर इज़ आर नेचुरल हियरिंग डिवाइस। ईयर जो है इट इज़ द नेचुरल हियरिंग डिवाइस। और ईयर जो है वो किस तरह से साउंड को सुनता है, किस तरह वर्क करता है, इसके ऊपर भी मैं एक आध वीडियो सेपरेटली, ये आपने वैसे बायो में भी स्टडी किया होगा, अगर नहीं किया तो अभी आगे कर लेंगे। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो आपको सेंड कर दूंगा, या मैं कोशिश करूंगा कोई एनिमेटेड वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई हो तो वो आपको सेंड कर दूँ, ठीक है। तो आपको ताकि ईयर का थोड़ा सा समझ आ जाए कि हाउ इट कन्वर्ट्स द साउंड वेव या हाउ इट रिसीव्स द साउंड वेव, ठीक है। किस तरह से साउंड वेव रिसीव होती है। फिर सबसे पहले साउंड ईयर से आके ईयर ड्रम को वाइब्रेट करेगी, फिर उसके बाद कुछ बोन्स वगैरह भी होती हैं, फिर इनर ईयर में फ्लूइड भी होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ये जाके फिर एट द एंड ऑडिटरी नर्व्स जो होते हैं उनको सिग्नल्स देते हैं। वो ऑडिटरी नर्व्स जो होते हैं वो सिग्नल्स ले जाके ब्रेन को पहुंचाते हैं, और फिर ब्रेन डिटेक्ट करता है कि ये कौन सी आवाज़ है, ये किसकी आवाज़ हो सकती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें वहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे। सो दिस वाज अबाउट डिटेक्शन ऑफ साउंड, that is to hear the sound. Three processes are required: production of sound, one is production of sound, second one is transmission of sound, third one is detection of sound. For production of sound we need vibrating body. Whenever body vibrates it produces sound. For transmission of sound we need transmitting medium, as sound is the mechanical wave, so it requires material which is called transmitting medium. So for transmission of sound we need transmitting medium. It may be solid, liquid, gas, or any material. Okay, so the last part for to hear the sound is the detection of the sound, or hearing of sound, or receiving the sound, or reception of sound. So डिटेक्शन ऑफ साउंड का मतलब ये है कि टू कन्वर्ट द वेव्स अगेन इनटू द साउंड, टू कन्वर्ट द वाइब्रेशन ऑफ एयर अगेन इनटू द साउंड. So for detection of the sound we need a hearing device. It may be natural like ear, or it may be artificial microphone वगैरह जो हैं. So for detection of sound we need a hearing device. It converts the signals again into the sound waves. दोबारा से sound wave में convert कर देते हैं. So this was about your today's topic, that is detection of sound. So learn this topic and write this topic on your NEET notebooks. आप NEET notebooks के बारे में बार बार बीच में से फिर पूछते हैं, आपको इश्यूज होते हैं. आप जो जो टॉपिक्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं यू हैव टू राइट डाउन ऑल दीज टॉपिक्स ऑन योर NEET notebooks. सिमिलरली जैसे आप क्लासेस में पढ़ते थे, टॉपिक को पढ़ते थे, एंड देन यू हैव टू राइट दिस टॉपिक ऑन योर NEET notebook in this case. Okay, thank you. If you have any problem related to the topic you may ask in the comment section. Thank you. Goodbye.